Good evening, everybody. Let's start with the today's webinar. This is a V pattern, or which we call it's little better than head and shoulder pattern. This is a kind of a reversal pattern, and it's how you actually can pick up how the stocks are going to now reverse, and from where you can get into a buy kind of a position. Usually, it is only for the buy trades, not for a sell trade. Now, as we go up and see, I will just read out whatever it is given in the book for you, all of you. Actually, I don't want to teach you anything which is not given in the books. Now, what is happening is, I'm not being anything for saying to anybody anything is, many people are putting a lot of messages in a lot of groups I am part of. This is available, this is done, I said it, and it is like this. Unless you are not able to show the source of from where you are getting it, there's no point discussing it. This is only one way thing. There's nothing more than giving a call. So I'm not, I never started this platform on this thing is it should be one-sided way. It should be always two-sided. You all should be able to do as good as any other member. So let's start with the V pattern. V pattern is what we know is English word known as V. It is not W and E. This is not, we are looking at this pattern. We are looking at V pattern. So what is V pattern is? It is a pattern which is similar to head and shoulders, and it is much more accurate. Remember this thing, this is more accurate as compared to the head and shoulders is. Now, how it forms? Usually the first is your downward movement. This is your downward movement, sharp downward movement, followed by a reversal. You don't know at which point you have to enter. This can be a good point. Many people keep on boasting that I have picked up here. There is no way you can pick up at this point. At this point, if you pick up after a sharp rally, then it's only by one strategy that is known as fish hook. So that's why I have kept both the strategies in one go. Now, it all depends upon what kind of risk taker you are. I'm just telling you, try to understand this concept very nicely. I'm going to put up a whiteboard here today. Usually I don't put a whiteboard. Can you see a whiteboard? Okay. Now just try to understand the concept. This is very important when you are doing this. The first thing it depends upon is your risk appetite. Now this is, you must remember it, all the three strategies what we are going to discuss today are pattern, are these kind of things. Whatever two or three we are going to discuss this. Now a stock has fallen like this. It might have danced a little bit like this, but it has come in here. You could have taken a trade here also. You could have taken a trade here also. You could have taken a trade also that there is a hold up of the area. Now there are three things which you need to know. One is a V pattern. Second is drop, base, drop, DBD. And third is fish hook. These three are the classical way you take it when you take a trade on a downward direction. Everything works. It is how you apply it. I'm just talking, I'm not going to use any indicators I'm going to show you. You can do it in intraday itself also. I do a lot of these things in Bank Nifty. So what happens is, what is a V pattern? Now everything is interconnected. And your first thing is, remember, is your risk appetite. Somebody a very high risk taker, just like me. I'm a prolific risk taker. So that's why my RR is very high. So I am able to take it at a very low price. I may not have a very good success rate. Mine may be hitting only 40 to 50%. Bank Nifty, I have been able to achieve a consistent 72% return success rate with a return of 36% on a monthly basis.
non-algo. It's not an algo. This is a non-algo. Algo one is around about 16% I'm getting approximately over the last 8 months. So remember, one thing is your stock is falling down. Whenever it falls down, it will form a base here. It will hold up because buyers will think it won't go below this. That is where the first hold up happens. This is known as base. This is known as drop. Now, somebody who wants to, you can take trade in two forms out here. One is you can take a buy trade or you can take a sell trade. और तो कुछ होता ही नहीं है. If you take a buy trade, that is only if it breaks above this zone. Then it makes it fish hook strategy. And you keep this as your stop loss and you take a trade. And how you trail your stop loss? Below of every candle which closes at whatever time frame you're doing it. Let's say you're taking a 5 minutes candle. So you have 3 candles forming like this. So every base, you will just trail your stop loss to the base of the candle. If it gets hit, no issue. This is a very high risk strategy. Fish hook is considered to be a very high risk strategy because you never know, it may give you a false breakout and come and hit your stop loss and then again go up. So this is a fish hook strategy. Now, if the stock breaks down here, you have a candle closure below it, then it enters into drop base drop strategy. Drop, base, drop. Then you again wait for the next base to form. And you keep on trailing your stop loss again below the low of the candle. Sorry, high of the candle. Sorry, it is on the high because it's dropping right. It's on the high of the candle. So you keep on trailing your stop loss till you again see this formation. Again, there will be a drop base. Then again, there will be hold up for an area. Then again drop, and then will come an area from where you will have a reversal. This is where the fish hook will come into play. So here the fish hook will play and then it will go up. Now at one point like this, the stock price is going to hold up. And this is known as a V pattern formation. So this is how you pick up a reversal pattern in stock market trading. If anybody says they can do any indicator like this, so most of the time it will be like this happening. At this point, we will have an indicator giving us an entry going up. What time frame to do is solely up to you. I'm going to only tell you for the swing trades, a pattern which has a very high success rate. So we will come back to whatever is the basic of the today's webinar is a trend reversal pattern. Any issues till now? If anybody has not been able to get it, because I will go for the drop based rally, rally based rally, drop based rally, rally based drop. These are 4 different kind of a patterns you need to know. Any issues till now? Okay, so I take it you all of it. It is very easy to identify. It is, you can see it with your naked eyes. Actually, if you start seeing it that way, you will always find it. And you should don't try to hunt it. Don't try to make a pattern. It will visibly look to you. This is what is happening. You can see in a lot of shares when I give 4 rupees stop loss, this is how I pick it up. It is 4 rupees. If it gets hit, I'm not worried even. Ultratech में 7,000 के पीछे 400 रुपए is nothing for me. So if it goes in one direction, 100-200 रुपए तो कहीं नहीं गए उसमें. Like we had a massive run in Ultratech from 6,000 to 6,164 rupees in one day. हमने तो निकल गए, हमने सोचा यहाँ से गिर जाएगा, वो उससे ऊपर और भाग गया, अब 6,500 के पास चल रहा है. So you need to find out patterns like this. If you need to hunt to find all these things, then you are somewhere wrong. It's that easy kind of a pattern.
The rules is very clear. I'm telling you only for the swing trade, and it is only to see on the monthly, weekly, daily, and the 4-hour time frame. I will show you some pattern today. And after that, if you are in a short position, you have shorted any call in Bank Nifty, get out of it. Get out of it because it's not going to come down. You wait for a strong close above the zone. This is mandatory. And next is you have to wait for the retest. You buy it on the retest. You don't buy it as such. If you try to buy it, no, ये तो breakout हो गया हम करेंगे ना. It has to go up, close down and retest the zone. And a strong engulfing candle at this level is your entry point, because it can go up and come down like this. So you have to have an engulfing candle out here, is bullish engulfing, to give you a real good trade out here. Now let's try to understand what it is. Now what I said you was, wait, I need to even minimize it. Okay. Now what I said you actually was, you have a strong base. Now you see what happens here. Base, drop, base, again drop, again base, again drop. But what happened at this base? It reversed. So this is DBD going on. This is here your fish hook will come. First fish hook. This is still here. Till this point, you will have till the next base or the previous base you had, you will have a fish hook strategy coming into play. So break out here, you play up till here. Now if it breaks up and then comes back and retests this zone, then you are taking the trade. This is the zone for the previous high, recent high, higher low, you can say. This is the low, this is the higher low. And you take a trade out here. And then you keep on riding. So any issue still now? I think so this diagram is very self-explanatory. So there are not two strategies which is done. This is DVD, fish hook, and V pattern all combined into one. So any issues you have, please, anybody. Because once I have gone, I will not come back and see it again. Okay. So what we spoke was, number one was a strong trend downwards, a very hard selling. जैसे FIIs ने की थी यूक्रेन वॉर में. जिस दिन खबर आई 12th 11th फेब से बाद तो सेलिंग में डाल रहे थे. जब से टेंशन बढ़ी 24th को वॉर उठा के मार्केट को, they pounded the market with all things. We had a hard hitting market coming down. हर पे वो एक बेस बना रहा था. यहाँ पे ट्रैप हो रहे थे क्योंकि हम डीबीडी को नहीं फॉलो कर रहे थे. नंबर 2 इज ऑन द पिक्चर इज शोइंग प्रीवियस हाईएस्ट हाई, ये जो हमने वो वी पैटर्न वाला बनाया था. एंड 3 इज वेयर वी टेक द एंट्रीज. This is also another way of seeing the V pattern. Is you had a hold up here, breakdown, it will go down. Base, drop, base, drop, base, drop. Again base formation. And then you see it's going up. So this is your fish hook. This is DVD. And from here is, this is you enter here. You don't enter here at 0.4. You enter at 0.5 on the retest. That is where you take and you take the trades. So this is what is a simple strategies. You can place your stop loss now. We didn't discuss the stop losses. The stop losses, you can place it here, or you can place the 50% of the lower of the triggering candle.
This is your trigger candle. You can place 50% somewhere on board here. This is your trigger candle. So you can place 50% on the body of this, and you can place somewhere out here. I will like if you want to play safe here. Place it here. This is very good if you do it on intraday. I do a lot on intraday using this technique. I have stopped using any indicator. I've stopped using any indicator on my charts. You can see it yourself to the naked eye how it behaves like this. Now I'm showing you on a 4-hour time interval. This is the high. मैं आप लोगों को बताता हूं why I'm so bullish on Bank Nifty. Now see what is happening here. Fall, base, fall, base, fall, base, breakout. This is DBD. This is DBD going on. Drop base, drop rally. This is the fish hook. And from here, it starts my onward journey. I am anticipating Bank Nifty to touch this point, 38,000 out. I am expecting it, but I have two concerns of my own. I have two big gaps here, one here and one here. Bank Nifty will come here to fill these gaps, whatever may come. उससे पहले 41,000 नहीं बनाएगा, पर एक बार नीचे जरूर आएगा स्विंग लेने के लिए, फिर ऊपर जाएगा. अब वो कब आता है, I don't know, but आएगा जरूर. Long time I had predicted when everybody was talking about Bank Nifty going to 46,000 and all that stuff, blah blah. अब की बार Bank Nifty 50,000 के पार. I knew it will come down and उसने 34,000 पे भी जो gap थी वो भी भर दी. So you can yourself see now. This is your base, last base it had formed. And उसी बेस को उसने रीटेस्ट करके ऊपर जा. यहाँ पे एक बेस बना रही है बैंक निफ्टी 4 आवर. इसका हाई कटा, ये ऊपर वाली बेस की तरफ चली जाएगी. ये आपका बेस इस बेस को कोइंसाइड कर. इस बेस के भी ऊपर चलेगी. So your Bank Nifty will not touch this base most likely. This is the previous base we had. तो आपकी बैंक निफ्टी अभी तो नियर फ्यूचर में तो ये लग रहा है, पता नहीं अब कल कोई और नया कोई नहीं कारनामा हो जाए, बट ये मुझे बैंक निफ्टी में अगर आप कॉल शॉर्ट में तो अभी निकल जाओ. दिस इज वेरी गुड only when you are doing it on a 4-hourly time frames. Very good for any positional kind of a trade. अब आप अल्ट्राटेक सीमेंट में देखो. ऐसे नहीं मेरे कुछ शेयर्स मेरे फेवरेट हैं, बिकॉज वो मुझे पैटर्न वैसा बहुत दिखाते हैं. आपकी ड्रॉप रेस ड्रॉप रैली होगी ना सारी कंप्लीट. ड्रॉप बेस ड्रॉप बेस ड्रॉप रिवर्सल फिश हुक. आपका फर्स्ट टारगेट ये है, हिट हो गया, वेट फॉर इट. उसने इसी टारगेट को वहां से उठाया, आपका ये टारगेट. सिंपल फंडा है, आपके सामने ही है, चार्ट ही बोल रहा है.
मैं तो बोल नहीं रहा. That is how I picked up it up at this thing. This is where I got trapped. I'm being very honest here. I got trapped here. ये जो ये डंडी बनी थी ना, मैं इसमें ट्रैप हो गया था. मैंने इसमें 1 आवर का टाइम फ्रेम लगाया. अब ये देखो व्हाट हैपेंड वाज, ये ऊपर कैंडल क्लोज हुई, मैंने इमीडिएटली ट्रेड ली. मैं यहाँ पे बैठा हुआ था, मैंने कहा यार यहाँ पे 6000 पे ये ना ऊपर जा रहा है, ये अब यहाँ तक जाए. वो वहीं से घूमा और उससे नीचे बस. आई वॉज वेटिंग फॉर हेयर. इधर मैंने जाके इसकी ऑप्शन बाय की जब इसने ये वाली कैंडल बनाई 5800. यहाँ मैंने ऑप्शन बाय की फॉर टिल दिस टारगेट. मैंने यहीं पे निकल गया था, मैं नहीं इतने लंबा लिया. फिर मेरे पास होल्डिंग में थे, मैंने यहाँ पे फिर एंट्री की जब ये 0.6100 6000 के पास. एंड आई प्लेड टिल हियर. इधर 61 64 पे हम बाहर निकल. डर ही इतना लग रहा था कि पता नहीं कौन सी न्यूज कब आ जाए. फेड की न्यूज आ रही थी, हम एग्जिट करके वो ऊपर गए, वहीं से उसको सेलिंग पड़ गई. So don't try to do it. If you are doing it on any time frame you think is good for you, you have practiced it, please go ahead and do it. Now this is 3 patterns in one, 3 in 1 class today for all of you. Now anybody wants to ask me any question on this, then I will show you one last thing is how I trade Bank Nifty on it. यार मेरी आवाज आ भी रही है? कोई बोल नहीं रहा वापस. तो आ रही सर, आ रही है. अरे ये तो Sir, good evening. Good evening. Can I ask a question, sir? Please go ahead, sir. सर ये जो गैप अप या गैप डाउन खोला है, जो गैप आप बता रहे हैं फिल करने के लिए कभी ना कभी प्राइस आता ही है सर, दैट आई मार्क आता ही है. बट सर ये जनरली ये बेस के ऊपर जो गैप है सर, दिस गैप इज आल्सो करस्पॉन्डिंग टू द गैप. जैसे डाउन साइड में गैप, अपसाइड में भी वो करस्पॉन्ड करके एक गैप बन जाता है सर. इज इट करेक्ट सर? यस सर, क्यों नहीं बनता सर. गैप्स आर गैप्स. सर एक बात याद रखना, उसने नए न्यू हाई या न्यू लो बनाने से पहले वो गैप एक बार जरूर भरने आए. 40,000 जब बैंक निफ्टी गई थी ना सर, सब कह रहे थे ऊपर जाएगी. मैंने इसलिए जब इसने स्विंग ली ना, ये नीचे आएगा ही आएगा. अब जो 2 बैंक में, एक आपने किसी ने बैंक निफ्टी में, मैं आपको आज बता रहा हूँ, एक जरूर देखना. मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में, ये बड़ा डेंजरस गैप पड़ा हुआ है. There is a gap at 29,000 which is नहीं, वो फिल हो गया. अच्छा सॉरी, और डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे था गैप 20. ये देखो ये वाला गैप, एक छोटा सा गैप पड़ा, पर ये इतना बड़ा सिग्निफिकेंट गैप नहीं है. बट जितने भी आप बैंक निफ्टी में गैप देखो, ये देखो 35 से ये भी भरेगा, ये भी भरेगा. गैप तो ये भरेगा ही भरेगा, जो मर्जी करो. आपका ये देखो इतना बड़ा गैप डाउन हुआ, उसने नेक्स्ट में खींच के भर दिया. अब आपका ये भी एक कितना बड़ा गैप पड़ा हुआ, 37,320 से लेके 36,600. आपकी बैंक निफ्टी वहीं रुकी हुई है एग्जैक्टली. तो ये तो टारगेट उसको टच करने में कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा. यहाँ पे भी आप देखो एक छोटा सा गैप है, ये भरेगा. बट अगर इसने ऊपर जाना है, उसने पहले एक बार ये स्विंग में दोनों गैप जरूर भरेगा. वैसे भी फंडा आप ले लो ना बैंक निफ्टी का, ये नीचे आया, ऊपर गया, नीचे, ऊपर. अब ऐसे तो स्विंग लेके फिर ऐसे ऊपर जाएगा. ये स्विंग तो उसको पूरी करनी अभी. ये वाली तो गैप वो भरेगा एक बार. अभी बैंक निफ्टी 200-300 पॉइंट नीचे आएगी और फिर ऊपर काम देगी. वो किसी दिन सीतारमन आंटी आएंगे, बस जिस दिन वो आई उसी दिन मार्केट गिर जाएगी. So now I show you something. मैं आप लोगों को बोर नहीं करता. What I do it on बैंक निफ्टी. आप बैंक निफ्टी को बड़े ध्यान से नोटिस करो. सबसे ज्यादा आपको ड्रॉप रेस रैली बैंक निफ्टी में मिलती है हमेशा. अब बैंक निफ्टी में जब भी देखो ना ड्रॉप बेस रैली आपको मिली ना, आपको वहीं पे उसने अच्छा खासा रिटर्न देके. मैं आपको रेट्रोस्पेक्टिवली दिखाता हूँ. कीप ऑन मार्किंग द जोन्स, और वो लाइंस कितनी इंपॉर्टेंट हो जाएंगी. मैंने इसकी बॉडी लिया क्योंकि इसको एवरेज आउट कर. ब्रेकआउट 15 मिनट्स के मैं टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ. आप छोड़ो, मैं यहाँ पे कर. ये सारा बेस बन गया आपका. एक ब्रेकडाउन, रीटेस्ट, नीचे.
ये आपकी यहीं पे टेस्ट हुई सर, ये आपकी यहीं पे रीटेस्ट होगी। अब आप ये वाला अपना एक जोन देखो, इसके नीचे बैंक निफ्टी आई नहीं। पहला टारगेट ये, यहीं पे उसने पहला बेस बनाया, इसी जोन के पास वो अपना पहला बेस बनाएगा, फिर दूसरे जोन के पास जाके उसकी पावर खत्म होनी शुरू हो जाती है। आप इसको करो, देखो आपकी हर जगह वहीं पे यहीं पे प्राइस रुक रहे हैं आके, आपको भी यहीं से रिजेक्शन मिली। अब आप इसको छोटे टाइम फ्रेम में देखो तो आपको और भी क्लियर नजर आए। ये सर बैंक निफ्टी ट्रेड करने का सबसे अच्छा तरीका है, डीवीडी एंड आरबीआर सबसे आसान तरीका है। इफ किसी ने एटीएम उटीएम में खेलना है तो दिस इज द बेस्ट वे टू प्ले। यू हैव टू वेट फॉर द बैंक निफ्टी टू ब्रेक ए बेस। नाउ लेट्स प्रिज्यूम कि हमारे पास ये फर्स्ट कैंडल आ रही है दिन की, ठीक है। अब आप इसको वेट करो, अब आपको 3-4 कैंडल एक जगह मिल गई और जस्ट मार्क द एरिया। आई डोंट नो कहां पे गई है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। अब आपके पास ये आ गया, ब्रेकआउट आ गया ऊपर, एटीएम बाय करो। अब आपके पास एक बेस इस लेवल पे भी आ गया कि आपकी 3-4 कैंडल्स बन गई, एग्जिट योर एटीएम, ऐसा बन गया। अब बाहर हो गया। अब आप इस बेस पे वेट करो, ये क्या करता है, ब्रेकडाउन, पुट बाय करो। आपका एक बेस यहां बन गया, आपका एक बेस यहां बन रहा है। कीप एन आई ऑन अनदर बेस बीइंग फॉर्म्ड। आपका बेस बन गया, एग्जिट योर पोजीशन इमीडिएटली है, एग्जिट योर पोजीशन, क्योंकि अगर ये ऊपर की तरफ कट गया तो हो गया। अब आपके यहाँ पे एक एटीएम पे आपने एंट्री बाय कर ली, फिर कॉल बाय किया, स्टॉप लॉस हिट, आपकी नीचे का कट गया, आपकी पुट बाय हो गया। अब नाउ यू आर बाइंग ए पुट, सो 2:1 हो गया। अभी हमारा थर्ड ट्रेड प्रॉफिट में चल रहा है। नाउ अगेन ड्रॉ योर बेस हियर, ये आपका बेस बन गया। अब आपने कॉल बाय कर, अब आपने नीचे कैंडल क्लोज होने तक का वेट करना है, जब तक आपने अपनी कॉल में से एग्जिट नहीं कर। अब आपका देखो ये एक बेस बन गया, उसके बाद आपका एक नेक्स्ट बेस ये बन गया। जैसे इस बेस के नीचे आपकी क्लोज होगी कैंडल, आपकी पुट बाय में होगी और आपकी कॉल एग्जिट कर दिया। अब आप इसको देखते जाओ, आपका बेस एक पे नीचे आ गया, ये एक बेस बना। ये तो उनके लिए जो सामने बैठे हैं स्क्रीन पे एकदम। अब आपका नीचे आ गया, अब नीचे आके आपकी एक और बेस बन। अब अगर इसका ऊपर बंद होगी कैंडल, एग्जिट या पुट ट्रेड इमीडिएटली, आप यहाँ पे कॉल में बाय में बैठ जाओ। आई डोंट नो कहां जाएगी आपका एक बेस, ये आ इसके नीचे हो गए, यू एग्जिट द कॉल, एंटर इनटू ए पुट। तो कीप ऑन डूइंग होल डे लाइक दिस, खेलते रहो, आपके कितने स्टॉप लॉसेस हिट होंगे। वो जब भी एक बार ट्रेंड में आएगा तो आपको पैसा देके ही जाएगा, बट जब भी बैठना कम से कम आधा पौना घंटा सोच के बैठना। अब आप ये देखो, यहाँ पे आपका बनता, आपका ये बेस टूटा ही नहीं, आपका तो आप कॉल में बैठे हुए, बैठे रहो, बड़े बड़े मूव्स मिलेंगे आपको, छोटे छोटे प्रॉफिट प्लस बड़े बड़े मूव्स। सो एनी क्वेश्चन स्टिल अब इसके लिए कि
आप इसको 1 मिनट में भी कर सकते हैं, 3 मिनट में। 1 मिनट में तो तभी करना अगर आपके पास टाइम नहीं है, बिकॉज 1 मिनट में तो बहुत तेज मूवमेंट होता है, एकदम ब्रेक खट 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 खट, बहुत जल्दी बहुत सारे बेसिस बनते हैं, मुश्किल हो जाता है करना। तो 1 मिनट में तो मैं नहीं रिकमेंड करता, मैं सबसे शॉर्टेस्ट टाइम अगर किसी को कहता हूँ तो 5 मिनट्स में करता हूं। आप आज देख लें, आपको मैं एक बैंक निफ्टी का बताया था पार्टी, पूरा दिन बैंक निफ्टी इस रेंज में घूमी है, एंड वी हैव दिस बिग जोन विच इज एम्प्टी। अगर दूसरा पैटर्न लूं मैं, ये इन्वर्टेड कप बन रहा है मेरे, so we may see a profit booking out here till here, ये इन्वर्टेड कप बन गया, so I will be little careful in bank nifty, not like this। स्विंग लेने आएगा, यहां तक आएगा, फिर ऊपर भाग जाएगा, मेरा अपना सोचना, so it I may be wrong, I may not be right। so यही था टोटल आज की क्लास। so any questions anybody, or otherwise we can wind up for dinner। ये आपका देखो रिलायंस ने कितना प्यारा रैली दी है, किसी ने ये बेस पकड़ा होता आपको, एग्जिट ही नहीं है आपको कहीं पे, नॉट इवन ए सिंगल कैंडल पे एग्जिट है। कितना प्यारा उसने दिया, ये देखो, ये पूरा बेस कितनी देर तक रिलायंस कंसोलिडेट होता रहा एक ही जगह पे, बैठे रहो, यहाँ पे आपका फर्स्ट एंट्री, ये स्टॉप लॉस है, सीधा आपको ऊपर था रिलायंस। मैंने देखा ही इसको बहुत लेट था, मैं यहाँ पे देखा था, तो आई कैन टेक इट। तो किसी ने अगर, क्या स्टॉप लॉस था इसमें, 9 रुपए का स्टॉप लॉस टोटल, मैं तो इससे भी नीचे लगा देता हूँ स्टॉप लॉस। ये तो लेके छोड़ दो, ये तो इससे ज्यादा और क्या आपको शेयर दो। आपका कौन सा बजाज फाइनेंस कल परसों दौरा था, बहुत अच्छा। नहीं, मैंने लाइंस ड्रॉ की होती, मैं बड़े बेसिस पे ध्यान दे के रखता हूँ। जी, एक बार एक किसी क्लास में हुआ था कि अगर बजाज फाइनेंस 10% गिर जाए तो वैसी आंख बंद करके खरीद लो, ये पैसे देके जाएगा। ये भी बहुत अच्छा शेयर है, आई लाइक ए लॉट, बट इसके अंदर एक ही पैटर्न में अब गड़बड़ हो रही है, लोअर हाइज बना रहा है, तो आई डोंट नो ये कहाँ भागेगा। डेंजरस लेवल पे आ गया, यहाँ से घूमेगा ये नीचे की तरफ, ये भी स्विंग लेगा, वन वे डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये अभी स्विंग लेगा डेली टाइम पे। और आज में लेट्स सी यहाँ पे क्या करते हैं। ओ सॉरी, तो ठीक है गाइस, और एनी मोर क्वेश्चंस यू वांट टू हैव? सर आपने वो बैट स्ट्रेटजी डाला था एक, वो बैटमैन, हाँ बैटमैन। बैटमैन सबको बैटमैन चाहिए देखने के लिए। व्हाट इज बैटमैन एक्चुअली? बैटमैन का ना ड्राइंग मैं बना के दिखा देता हूँ। ये किस्मत होती है, दिस इज योर स्क्रीन, दिस इज योर बेसलाइन, so this is created in such a form, this is also green, this is also green, this is also green, and this is also green, and the margin required is only 35,000 rupees,
Now the problem with it is ये आपको दिन में एक या दो बार सिर्फ मौका देगी बनाने के लिए, सिर्फ एक या दो बार मौका मिलेगा, आपको पूरे दिन में नहीं होता। वो प्रीमियम्स ऐसे बने होते हैं कि ये प्रीमियम भी और ये वाला प्रीमियम भी आपके इन दोनों प्रीमियम को निगेट करके होता है। सेंटर में आपका प्रॉफिट आधा रह जाता है, बट अगर भगवान ना करे मार्केट एक डायरेक्शन में दौड़ गई, लेट्स से जैसे आज गैप अप खुली, कल मेरा बैटमैन में ये वाला लेग गलत मैंने बना दिया था, तो आई एग्जिटेड दिस लेग टोटली, ये लेग मैंने आज टोटली एग्जिट कर दिया था। तो आज मुझे वो जाते जाते सोचो, मैंने आज बाय साइड में था, जब गैप अप खुला मुझे कितना तगड़ा प्रॉफिट आ रहा, ये मेरे से गलत हो गया था। ये कल ऐसा हो गया था, ये रेड आ गया था बीच में, ये मैंने महंगा खरीद लिया था। वो जब मार्केट कल गिरी तो मैंने डर के मारे में इसको खरीद लिया, ये मैं खरीदना मैंने नहीं था आज, ये मैंने आज सुबह जब खरीदा सेफ्टी के लिए, तो ये तो यहाँ पे इतना बड़ा ग्रीन बना हुआ था। तो आई डोंट वांट टू डिक्रीज माय प्रॉफिट इन एनी वे, तो मैंने ये नहीं हुआ, मैंने ये सुबह ये वाली दोनों बाइंग लेग अपनी कवर की। यहाँ पे जो मेरी कॉल मुझे लॉस दे रही थी मैंने उसको भी कवर किया, मैंने इसको रहने दिया, उसको मैंने 0.1 पे खत्म किया। So Batman today was my first deployment. So it is an expiry based trade. It starts, I will be starting it on Monday again. And I usually end up doing somewhere around 10:30 to 11 o'clock. मेरा फंडा यही होता है कि I only wait for the Nifty and the Bank Nifty to come at a specific point. Now let's say today Bank Nifty was trading at 36,500. मैं सारा दिन स्ट्रैडल्स एंड स्ट्रैंगल्स पे खेलता हूँ एक्सपायरी वाले दिन में, बहुत मजा आता है खेलने में, खासकर 3 बजे मैंने एग्जैक्टली 36,500 का स्ट्रैडल बेच दिया, 48 रुपीज वन साइड, 45 रुपीज ऑन अनदर साइड। ये मेरी जो पुट थी ये मैंने 72 पे कवर कर ली क्योंकि मार्केट गिर गई एकदम, बट ये जो मेरी थी ये मैंने 0.1 पे की। सो 93 में से मेरा 28 रुपीज का लॉस हुआ बस, और मैं प्रॉफिट बना के बाहर निकल गया। मैं ऐसे बनाता रहता हूँ, मतलब ये 48 तो मैंने पूरे लिए, उसमें से मेरे ये 23 निकल गए, तो 25 पॉइंट्स का मुझे प्रॉफिट हो गया। तो ऐसे ही होता है कि आप यू स्टार्ट प्लेइंग एट 3 o'clock, 3 बजे एग्जैक्टली स्टार्टल थ्रो करो, बट मेक इट श्योर पुट और कॉल की जो प्राइस हो वो आपको सेम मिल जाए। यू हैव टू कीप ऑन सर्चिंग फॉर इट, ये सारा दिन आपको देखना पड़ता है, और उसके लिए आपको एक ही चीज फायदा देती है, दैट इज योर डीबीडी, ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप रैली। जब भी, या आरबीआर, रैली बेस रैली, जब ये बी बनता है तब मैं स्टार्डल्स के बारे में सोचना शुरू करता हूं। उस टाइम अगर आपकी किसी राउंड फिगर के पास बन रहा है, जैसे 36,500 हो गया, 36,400 हो गया, 36,300 हो गया, यू विल सी एट वन गिवन पॉइंट आपके पुट और कॉल में जो डिफरेंस होता है वो 2 से लेके 4 रुपए का हो। This is the time to throw the straddle in. एक्सपायरी वाले दिन पे 50% of your entry price should be your stop loss and keep on trailing your stop loss. अगर वो आधा घंटा भी इस यहाँ पे रह गया तो प्रीमियम में करीब 10% के करीब तो मिनिमम डिके होता है। सो डीबीडी का सबसे ज्यादा फायदा या आरबीआर का सबसे ज्यादा फायदा इज ऑन एक्सपायरी डे, when you are doing it on the expiry day। मैं तो उसी दिन बैठा, मैं तो सारा दिन होता है। अभी मैं कह रहा था ना, अगर गौतम जी हैं तो he will say it, I always say it, मैंने निफ्टी स्टार्टल किया शॉर्ट 114 रुपए पे कॉल एंड पुट, ये 114 एक होता है, 112, वह किसी भी साइड मार्केट जाए तो मेरा इसका डिके ये दोनों बराबर हो गए। सो आई वेट फॉर दिस बेस टू फॉर्म, और ये दोनों मुझे मेरी वॉच लिस्ट में एक ही रेट पे नजर आनी चाहिए। ट्राई करना बहुत आसान होता है। 36,100 की कॉल अगर आप, जैसे ये 36,400 है, मंडे को लाइकली मार्केट शुड गैप अप या स्विंग लेगी तो थोड़ा सा नीचे आती है, तो कहाँ पे भी 9:30 के पास
10:30 एंड 12:30 के पास यू विल गेट वन जहां पे बेस बनता है. बी वेरी केयरफुल, जैसे ही आपका बेस कटता है देन यू हैव टू टेक द फर्स्ट मेजर. मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ, दिस इज फॉर ऑल सेफ प्लेयर्स 50%. आई नेवर पुट अप ए स्टॉप लॉस व्हेन आई एम ट्रेडिंग ए स्ट्रैडल. मैं कभी स्टॉप लॉस नहीं लगाता, मेरा अपना तरीका करने का. मैं उसके अंदर एक ऐसी एडजस्टमेंट करूंगा कि आधे घंटे के बाद उसको ग्रीन आयरन फ्लाई बना. So it will be no profit, no loss. So there will be multiple green iron flies like this in between. तो आपको हर जगह मेरी ग्रीन आयरन फ्लाई मिलेगी, किसी एक में वो बीच में रुक जाती है. एक बार किस्मत खराब थी, वो यहाँ रुक गई, दो के बीच में 4 लगी थी, सेकेंड एंड थर्ड के एकदम सेंटर में रुक गई. मतलब समझ नहीं आया कि आप दुख मनाओ कि सुख मनाओ, वो फंसा गई थी. ग्रीन आयरन फ्लाई का मैंने ऑलरेडी कंसेप्ट आप लोगों को दिया हुआ है. ग्रीन आयरन फ्लाई इज वेरी इजी टू मेक. उसका ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है. एनीबडी वांट्स टू डू इट, जो दिया हुआ है दैट इज ऑन विद एन ओटीएम स्ट्रैंगल. ये जो आपका लॉस है इसको आप ओटीएम सेल से उसको कवर कर लें, पॉइंट्स, उसके पॉइंट्स कैलकुलेट करके. तो ये दिस इज द इजीएस्ट वे ऑफ मेकिंग ये ग्रीन आयरन फ्लाई. प्लीज डू नॉट ट्राई टू sell OTM in present days and take it to the next day कि हाँ मैं इसका प्रीमियम ले लूंगा. गलती से भी मत छोड़ना. What happens is, अब जैसे आज हुआ, फेड के रेट 0.25% से उन्होंने बढ़ा दिया, तो we were anticipating, पीछे 2 बार मार्केट इस बात पे गिरी थी. आज एवरीबडी वाज एक्सपेक्टिंग मार्केट टू फॉल, पर कल मार्केट ने, इवन SGX निफ्टी ने 300+ पॉइंट्स की क्लोजिंग दी थी. आज क्या हुआ, मार्केट आप गई, कुछ नहीं बचा, मार्केट ही आप खुली. हम क्या कर ले. तो ये हम लोग को फंसा देते. सो डोंट ट्राई टू टेक ओटीएम इन प्रेजेंट डेज ओवरनाइट. एक आधा दिन ठीक है, पर 2 दिन से ज्यादा मत रखना. अगर लेना भी है तो कम से कम 2000 पॉइंट का दूर होना चाहिए, नॉट लेस देन 2000 पॉइंट. जो मर्जी बैंक निफ्टी घूमे, 1112 पॉइंट से ज्यादा नहीं होती. अब यू आर स्टिल आउटसाइड ओटीएम नाउ. सो ठीक है गाइस, ये और कुछ सुनना है, अभी बोर हो गए उन्हें सारे. नहीं सर, मजा. थैंक यू. बहुत अच्छा लगा सर. थैंक यू सो मच सर. तो किसी ने ग्रीन आयरन फ्लाई ट्राई की है? एक्चुअली टेंशन फ्री हो जाते हैं आप. ग्रीन आयरन फ्लाई का सबसे ज्यादा फायदा है अगर आप मंथली करते हो. मंथली पे बड़ा फायदा. ग्रीन आयरन फ्लाई के अंदर जो जिस साइड में मार्केट जा रहा है उस टाइम पे उस साइड में जो हम ओटीएम बाय करते हैं ना, वहां पे टेंशन आनी शुरू हो जाती है. Let me show you. Now let's presume सर टेंशन मतलब क्यों आती है, मैं आपको बताता हूँ. मैंने आपको एक बात बोली है कि ओवरनाइट पोजीशन मत लेके जाना. अब आप ये देखो, अगर आपने 614 और ये लियो 494, देयर इज अ बिग डिस्पैरिटी. बट आप इससे नीचे वाली देखो, 560 एंड 550, 10 पॉइंट का गैप है. नाउ लेट्स थ्रो इट हियर. मैं आपको वो बेसिकली फंडा दिखा रहा हूँ ग्रीन आयरन फ्लाई बनाते कैसे. ये आपका एटीएम स्ट्रैडल हो गया. 300-500 पॉइंट दूर जाके आप 300 पॉइंट दूर चले जाओ, ये बाय कर लो. अब मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ सर, इसको कैसे आपको आगे खेलना है, हाउ यू शुड प्ले सेफ. बाय. ठीक है सर. यस. ओके. ना प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट देखो कहां पे, आप 15%. आप कहोगे ये तो यार 2 मिनट में बाहर निकल गया. अब इसमें करना क्या है आपको, सबसे पहले
आपने 525 रुपए करने, दैट मीन्स ओनली 20 पॉइंट्स और 30 पॉइंट्स। तो दूर की देखो कोई एक, हम और दूर चले जाते हैं, हम कहते हैं कि हम तो ये 38,400 की एक सेल कर देते हैं। आई एम टॉकिंग ऑफ नियरली 2000 पॉइंट्स अवे, और नीचे तो मैं और भी दूर चला जाता हूँ, क्योंकि नीचे में पैनिक बहुत ज्यादा होता है। 34 रुपीज की करीब, ये भी मैंने करीब 3000 पॉइंट दूर बेच दी। अब आपकी ये बन गई है, मंडे को मार्केट खुलती है या यहाँ पे फ्लैट खुलती है, जस्ट प्रिज्यूम इट आई एम मेकिंग इट 15 रुपीज ईच, कि मैं 15 रुपए पे दोनों पे निकल गया। इसको सर जरा पॉइंट को जरा थोड़ा ध्यान से समझना, मैं अब आपको इसको ये बता रहा हूँ हाउ यू मैनेज योर प्रॉफिट। नहीं तो ग्रीन आयरन 5 में तो प्रॉफिट ही बहुत कम होता है। नाउ यू सी व्हाट हैज हैपेंड इज योर प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इज 99.5%। अब मार्केट ये जो रेंज है आपकी 36,081 से लेके 36,700 तक, मतलब 700 पॉइंट का आपका गैप है, जिसमें आपको मैक्सिमम प्रॉफिट है। उसके बियॉन्ड तो सिर्फ 818 रुपए ही मिलने हैं ना। अब क्या करना है, जब ये वाला जो डंडी है प्राइस की इस साइड मूव करेगी, आप यहां नीचे से कॉल ना, जैसे ये 31,466 या 32,430, इसको शॉर्ट करनी शुरू कर दो, इसको शॉर्ट करो। अब आपने लेट से प्रिज्यूम कर लिए कि आपने नीचे की कॉल शॉर्ट कर दी 32,000 वाली, लेट से 33 हमने कर दी 25 रुपए की, ये तब तक 15-16 रुपए की होगी। पड़े रहने दो इसको थोड़ी देर के लिए, ये भी 10-15 रुपए बीच में ले लो। मान लो इसको ये आपको हो जाती है 4-5 रुपए में आपकी बिकती है। अब मार्केट इस साइड आ गई, कोई बुरी खबर है, आप ओवरनाइट यू आर नॉट चेंजिंग योर पोजीशन, आप ओवरनाइट ओटीएम नहीं लेके जा रहे। अब आपकी मार्केट नीचे गिर जाती है। रात को रशिया ने एक हाइड्रोजन बम फेंक दिया उस पर, यूक्रेन पे, देयर इज अ बिग वॉर, आप ऊपर से शॉर्ट करनी शुरू कर दी। आपने ये जो ग्रीन एरिया है अपना ये बढ़ाते जाना। नो ऑन द एक्सपायरी डे क्या होएगा, जो आपकी ये वाली वाइट इज 0.5%, ये क्यों 0.5 दिया होता है, इसमें से एक पोजीशन आपको बहुत बड़ा लॉस दे रही हुई, जो आईटीएम होगी अंदर, उस पे स्टॉप लॉस लगा देना। एक्सपायरी वाले दिन सबसे पहले उस पे स्टॉप लॉस लगा। नाउ लेट्स से कि दिस इज ट्रेडिंग एट 1400 रुपीज, तो 1410 का स्टॉप लॉस लगा कर छोड़ दो, 5 रुपए दे दो मार्केट, कोई बात नहीं। अगर मार्केट उसी डायरेक्शन में गई तो आपका प्रॉफिट तो कहीं जाएगा नहीं, और अगर वापस आई तो उसने सबसे पहले इस एरिया में आना आपको लॉस देने के लिए। आपको लॉस देने के लिए पहले उसने ये चोंच में आना है, जैसे ही चोंच में आएगी आपको प्रॉफिट आ जाना है। So when you take all these things, it is very easy to do. ऑप्शंस में तो ऑप्शन ही ऑप्शन खेलने। आज मैं कोटक के रात को गलती से स्टार्डल बेच के चला गया, कल वो दिन में मुझे 1,000 दे रहा था, मैंने कहा यार मैं पूरे 12,000 लूंगा, एंड आई ओपनड अप विथ 5,000 लॉस, नहीं 3,000 लॉस। अब मुझे समझ नहीं आया कि करे क्या। मैंने अल्टीमेटली स्टार्डल मेरे उससे 17,200 वाज देयर, जैसी मार्केट ने काटा मैं स्टार्डल को लॉस बुक करके बाहर निकल, पर जाते जाते मैंने उसमें से 2,900 बना के बाहर निकल। जब 17,300 पे बेस बना रहा था निफ्टी, मेरी लाइंस ड्रॉन है देखो, this was the range where which Nifty was not able to break. मैं इस रेंज में बैठा हुआ था, मैंने कहा ब्रेक तो करे, क्या करना है। इसने जैसे ये फॉल्स ब्रेकआउट दिया, आई वाज वेटिंग फॉर द ओपनिंग ऑफ दिस कैंडल। इस कैंडल की मैंने ओपनिंग देखी, इसकी ओपनिंग इसके क्लोजिंग से हल्का सा नीचे थी, मुझे पता था ये फॉल्स ब्रेकआउट हो गया है। अगर ये क्लोजिंग यहां होती कहीं या ओपनिंग यहां होती, मैं फंस जाना था, मुझे इमीडिएटली ऑल मेजर्स लेने पड़े। मैं यहां से नीचे आ मार्केट, वो उसी के अंदर घूमता रहा। मैंने यहाँ पे स्टार्डल शॉर्ट किया था, यहाँ पे 17,300 पे,
ये करीब 12:30 बजे का टाइम है। देखो मैंने आपको बोला 12:30 बजे के करीब होता है ये आमतौर पे। ये टाइम 12:40 की कैंडल है, तो 12:35 में शुरू, 12:40 खत्म। दिस इज 12:30 बजे के करीब आपको एक बेस मिलता ही मिलता है हमेशा। मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया था स्टार्टिंग, और मैं सारा दिन बैठा रहा, और वो बंद एकदम कहाँ हुआ, 17,300 पे। 17,300 पे अगर आपने स्टार्डल बेचा, उसका मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ होगा, 17,300 पे ही होएगा। ये पॉइंट ऑफ कंसर्न था जब ये नीचे ब्रेकआउट किया। और आप ध्यान से देखो, इसकी क्लोजिंग और ओपनिंग में माइल्ड सा गैप हो, उसने वापस ही अंदर खींचा। मैंने यहाँ पे निकल गया था 1797 पे, तब ऑलमोस्ट 1-2 रुपए के ऊपर मैं दोनों में से निकल, तो ये मुझे जाते जाते पैसे दे गए। So losses were recovered. So you must look for the place where this it holds for some time. बेस पे आपको एटीएम की अगर स्टार्डल बेचने वाले हो तो आपको कॉल वहां पे फायदा मिलेगा ही मिलेगा। एंड यू शुड ओनली प्रे, इट शुड नॉट, मतलब ये सबसे गंदा होता है कि आप ऊपर जाए और नीचे मार देंगे, आप बुरी तरह फंस जाते, क्योंकि फिर आपका अगर आप नीचे वाली पुट भी बाय कर लो तो आपको ऊपर वाली कॉल इतना लॉस दे चुकी होती है कि आप निकल नहीं पाते बाहर, वो लॉस मेकिंग हो जाती है स्टार्टिंग। जेके पेपर ये तो मैं देखता भी नहीं, देख लेते आपके लिए। एक उसने डॉक्टर श्री हरि ने बड़ा अच्छा स्टॉक डाला था AWL, इतना प्यारा बना रहा था सर। ये तो बेस बना रहा है आपका, बेस बन तो गया आपका, तो सर ये तो 5 मिनट का चार्ट है सर, ये तो नीचे आने वाला है, ये तो यहाँ पे बेस बना रहा है। ये रैली कर रहा है, अभी बेस बना रहा है, इसको जैसे ही काटेगा सर ऊपर बैठेंगे, नीचे काटेगा हम नीचे बैठ जाएंगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। ये देखो आपके ये भी बेस बना है, ये भी बेस बन रहा है, 3 कैंडल्स का रेंट आप। तो अभी मैं ये सर वही कह रहा था, डाउनवर्ड्स में भी ये वी बना सकता है ना? सर डाउनवर्ड के लिए वी नहीं यूज करते हैं, ओके डाउनवर्ड के लिए वी नहीं यूज करते सर, वी फंसा देगा। ओके ठीक है। ठीक है सर, चले फिर कल परसों क्या करना है, परसों वी विल डू समथिंग रियली वेरी वेरी गुड। वी विल डू व्हाट इज द कैंडल्स, किस टाइम फ्रेम पे कैंडल्स देखते हैं और उसका क्या फायदा होता है, एंड वी विल डू दिस ऑन डे आफ्टर। ये इसलिए आपको वो देखना जरूरी है कि आपको पता भी होना चाहिए कि कैंडल का क्या मतलब है। ये आपकी जो भी पैटर्न है, ये इस पैटर्न में क्या फायदा था, अगर ये पैटर्न बना है तो उसका क्या मतलब। हम गलत टाइम फ्रेम पे देखते हैं। ये देखो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स, और जब आपका ग्रेन स्टोन डोजी बना यहीं से क्यों गिरा, आपको तो ये भी तो ग्रे स्टोन बना, तो स्टॉक नीचे क्यों आया, व्हाई दिस इज सो, वी विल डिस्कस इट। और कभी किसी क्लास में अगर किया तो हम ये करेंगे फिर बिग ट्रेडिंग, कैसे बिग ट्रेडिंग करते हैं, ये भी मैं बहुत करता हूँ, मुझे बहुत पसंद है करना। इट्स अ वेरी वेरी सिंपल, इट्स जस्ट बेस्ड ऑन योर ओपन एंड क्लोज। आपका ओपन कहाँ हो रहा है और क्लोज कहाँ हो रहा है, दैट्स इट, यू टेक द ट्रेड, दैट्स इट। कुछ नहीं होता, देखी जाएगी, एक आधी बार स्टॉप लॉस सेट होता है, आमतौर पर फेल हो जाता है। ठीक है सर, so we close today's session and we'll meet on Saturday. ठीक है, okay, good night everybody. Thank you, sir. Good night. Thank you, sir. Good night, sir. Good night.